Yes, sir. Respected ma'am and my dear friends, I am the Raj Verma. I am a student of the BSc IT. 1 minute. I would like to. I am the Raj Verma. ये सही है नहीं? I am Raj Verma. The क्यों नाम Yes, के आगे ma'am. the नहीं लगता है ना? Why will Yes, you ma'am. the Raj Verma? Yes, ma'am. Respected ma'am and my dear friends, good afternoon, all of you. I am Raj Verma. I am the student of the BSc IT. I would like to present views on discipline. Discipline is an act and rule regulation. Discipline is an essential part of life. If you need achievement your life, you need discipline. Discipline is a very important role for students, and discipline define you. Thank you, ma'am. Speak some more. What are the 5 W and 1 H for discipline? What, ma'am? What is the 5 W and 1 H? I told you about any topic. In any topic, include 5 W and 1 H. Yes, ma'am. मैम कुछ प्रॉब्लम था इसलिए मैम उसको वो तैयारी नहीं कर पाए मैम. अगले क्लास में मैम वो रूल याद रखेंगे मैम. चलिए खुशबू. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am, and my dear friends. My name is Pushpa Kumari, and I am a student of BCA. I would like to present my views on my daily routine. At first, I wake up early in the morning at 6 o'clock. Then I went to a walk. After that, I came back in my room and 1 minute खुशबू, तुम डेली रूटीन बोल रहे हो तो ये पास्ट टेंस में क्यों होता है? क्या मैम? आप डेली रूटीन बोल रही हैं तो दिस शुड बी इन प्रेजेंट टेंस. नो, आई गेट अप एट, आई गो फॉर अ वॉक, आई वेंट. क्यों ये पास्ट टेंस में नहीं आता है? डेली रूटीन इट इज ऑल अबाउट जो कर रहे हो, कल भी कर रहे हो, आज भी कर रहे हो, परसों भी करोगे. डेली रूटीन बदलेगा तो बदलेगा, लेकिन जो आप करते हो, जो तुम करते आ रहे हो, ठीक है, उसको आप बोलोगे. पास्ट टेंस में नहीं आ रहा है. स्टार्ट अगेन. Good afternoon, and my dear friends. My name is Pushpa Kumari. I am the student of BCA. I would like to present my एक views on मिनट. my daily. आई एम द स्टूडेंट क्यों? क्या तुम अकेली स्टूडेंट बीएसआईटी के हो? नहीं ना. No, ma'am. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बीएसआईटी. I am a student of BCA. I would like to present my views on my daily routine. At first, I wake up early in the morning at 6 o'clock. I go to a walk. Then I come back home and I take a bath. After that, I study for some time. Then I take my breakfast. After that, I got ready to my college. At 11:30, I went to my college, and after 12 o'clock. केम क्यों? मैं पास्ट टेंस सुनना नहीं चाहती हूँ इसमें. ये डेली रूटीन है. नो पास्ट टेंस. Okay, ma'am. At 12 o'clock, I started my first class. That class is English literature. And after that, I completed my all classes at 4 o'clock. Then I come back home and take some rest. And after that, I eat something and go to bed for study. After that, 9 o'clock, I take my dinner and again I study for 2 hours. Then I go to bed at 12 o'clock for sleep. Thank you, ma'am. Okay. Hello. Tarun Kumar. Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. My name is Tarun Kumar. Now I am completing BCA from CMS College, Patna. I want to discuss about my last night. Last night I went to attend a party. I thought that I would be back
11 o'clock, but I did longer than expected. I came back home at 2 a.m. and sleep late, so I wake up today so late, around 9 o'clock. Then I ready for college, and sound नहीं आ रहा है. Okay, and then you got ready for college. And what happened after that? Then in the path I meet my friend Hari Om. With my friend I went to college. When I enter the college, firstly I go towards the reception and take CR seat of my class, and then together with my friend enter into the classroom. My first class started at 12 o'clock. So what was this first class about? Give me a report of the classes held that day. What happened? Tell me. First class is taken by the Sanjana ma'am. By the He Sanjana tell- ma'am. The नाम क्या है? विदा By- लक्ष्मी है नाम क्या by है? Sanjana ma'am. क्या पढ़ाई? What did she teach? He has started a story of Postmaster, written by Rabindranath Tagore. This is the very interesting story. Here, Postmaster named was Ratan. He belongs to a village, but he came in a new city. Here he met a small girl. That's all. Yes, he met a small girl. That's it. Okay. Roll number 45. Camera on करो. रोहित कैमरा ऑन करो. नाम क्या है? क्या नाम है? मैंने क्या बोला अभी? स्टोरी का नाम क्या है? उसमें मैं रूम में नहीं हूँ जब इसीलिए मैं जॉइन कर रहा हूँ। जब टास्क में है तब रूम में रहना चाहिए ना आपको. इधर से लेट से लिंक आता ना तब तक हम चले गए थे कुछ. कोई लेट से लिंक नहीं आया है. लिंक आपका कब का आ चुका था? हम 12 बजे नहीं आए थे. और आकर के भी कैमरा ऑन नहीं रखते हैं आप लोग. तो चलिए जितने भी लोग हैं आपको हम बता रहे हैं, जो लोग सिंसियर हैं उन लोगों को क्लास आगे चलेगा. जो लोग नहीं हैं तो रूम से बाहर वेट करें, कहीं वेट करें. आई डोंट केयर.
जब बाकी नहीं मानते हो तो टीचर क्या केयर करेंगे? बोल रहे हैं कैमरा ऑन रखो, कैमरा ऑन नहीं रखोगे। नेक्स्ट क्लास से मैम करेंगे तो रूम में। तो ठीक है, आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। ऑलरेडी हम सेकेंड ईयर क्लास लेना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टोरी कम्युनिकेटिव इंग्लिश का नहीं चलेगा? कम्युनिकेटिव इंग्लिश में दिया गया था स्पीच। एक दिन स्पीच रहता है और एक दिन रिटन रहता है, लेकिन कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं है, तो टाइम क्यों वेस्ट हो? कम्युनिकेटिव इंग्लिश का मतलब होता है एक दिन स्पीच एक दिन रिटन होता है, ग्रामर होता है, रिटन स्पोकन दोनों। लेकिन आप लोग प्रिपेयर नहीं करके आइएगा तो टीचर्स क्या करेंगे? बात नहीं मानिएगा, कैमराज ऑफ रहता है, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, हाय हेलो गुड मॉर्निंग कुछ नहीं, नथिंग, एकदम से चुप। व्हाट कैन वी डू? जो बच्चे सीरियस हैं, सिंसियर हैं, उनके लिए क्लास चलेगी आगे, एंड बाकी को नोबडी हैज द राइट टू से कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप हमसे पूछिएगा नहीं ना, हम आपको देते हैं एजेंडा, उस पर आपको खड़े 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 उतरते नहीं। यस मैम। मैंने कहा था आपको एक दिन स्पीच रहेगा, यस और मैम। स्पीच मैंने टॉपिक कोई नहीं दिया आपको। लेट मी गेट बैक टू यू। मैंने कोई स्पीच का टॉपिक देना शुरू किया नहीं है। पहले एक आध तो मैंने, आप अपने मन से स्पीच तैयार करेंगे और मेरे पास आकर के बोलेंगे, क्लास में बोलेंगे। पहले आप कंफर्टेबल जिस टॉपिक में है उस टॉपिक पे आप बात कीजिएगा। शुरुआती दौर पे आपको कोई भारी भरकम स्पीच देने वाले नहीं है टॉपिक। इनिशियल स्टेजेस में there will be simple topics which you will choose, which you will be choosing, and after some time the topic will be given to you like development of Bihar or my vision of Bihar and India my country. तो पहले आप सिंपल में तो आप करिए, सिंपल जो आप लिख सकते हैं, जो आप बोल सकते हैं। और मैंने पहले ही कहा है, अब आप देख के नहीं बोलेंगे। ये सारे गाइडलाइंस मेरे मेरे देने के बाद भी आप लोग उसको फॉलो नहीं करते, तो व्हाट कैन द टीचर डू? आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम, आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। तो पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए फिर आप। ठीक है, एक दिन कम्युनिकेटिव इंग्लिश रहेगी जिसमें ग्रामर वर्कशॉप रहेगा, जिसमें ग्रामर वर्कआउट रहेगा। लास्ट क्लास में मैंने दिया आइडियम्स एंड फ्रेजेस, दिया ना मैंने। आई गिव यू आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंसेस बनाना है, समझना है, स्ट्रक्चर समझना है। लेकिन एक दिन स्पोकन का, एक दिन रिटन का, ऐसा एजेंडा बना हुआ है। चलिए, अभी जो भी टाइम है आपको बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लास को मेरा काम है आगे बढ़ाना। एंड कम्युनिकेटिव इंग्लिश में नरेशन एक चीज आती है, ठीक है। नरेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज नरेशन? बताइए, ग्रामर में व्हाट इज नरेशन? Any statement said by user, then I will said same sentence according to me. Narrating something which happened. मैम नरेशन में दो दो सेंटेंस को किसी वर्ड से उसको मतलब अटैच किया जाता है, जैसे कोई सेंटेंस उसको एंड से अटैच कर दिए दो सेंटेंस को, नहीं, वही नरेशन। in writing or in speech, मैम narration is the process of recounting a sequence of events. मतलब नरेशन क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, प्रोसेस ऑफ इवेंट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको हम बात करेंगे, टॉक अबाउट, नरेट द स्टोरी, नरेट द इवेंट्स ऑफ टीचर्स डे। तो आप क्या करेंगे? आप याद करेंगे, रिकाउंट करेंगे, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ रिकाउंटिंग। So what is narration? It is the process
रिकाउंटिंग मतलब एनी इवेंट, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। It is a process of recounting any happening or event. It can be real, सही हो सकता है, या it can be imaginary, काल्पनिक भी हो सकता है। रियल मतलब सही घटना, जैसे टीचर्स डे में क्या हुआ था। What happened on Teachers Day? तो आप क्या करेंगे, आप शुरू से आखिर तक एक कहानी बनाएंगे ना, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आखिर में क्या हुआ, Yes, ma'am. राइट। दिस इज कॉल्ड नरेटिंग, रिकाउंटिंग ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट। वो हैपनिंग रियल भी हो सकता है जैसे टीचर्स डे, और इमेजिनरी भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल द पोस्ट मास्टर। ठीक है, अगर हम बोलेंगे नरेट द स्टोरी ऑफ पोस्ट मास्टर तो आप शुरू हो जाएंगे ना। पोस्ट Yes, मास्टर sir. was from Kolkata, he came to Kolhapur, वहां क्या हुआ, what happened and then this happened and that happened। ठीक है, this is called narration, the process of recounting any happening। और सबसे बेहतर कम्युनिकेटिव इंग्लिश में क्या हो सकता है, नरेशन। किसी भी कहानी का प्रोसेस देखना, समझना और उसको बताना, किसी भी कहानी को समराइज करना। आप लोग लिटरेचर समझते हैं सिर्फ लिटरेचर है, और लिटरेचर में कितनी नरेशन है आप नहीं, ये नहीं देख पाते हैं। समझ में आया? Yes, sir. इसी लिटरेचर में प्रपोजिशन भी है, एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, प्रोनाउन भी है। और कितने टाइप्स ऑफ नरेशन होते हैं, व्हाट आर द ऑल टाइप्स ऑफ नरेशन। जिसमें कंपेयर किया जाता है कोई कहानी को, कोई दो पर्सन को, कोई आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई वाक्य, कोई घटना, उसको नरेट किया जाएगा। किसी कहानी के किसी कैरेक्टर को बताना है। नरेटिव राइटिंग ऐसे हो जाता है, नरेटिव राइटिंग जो कुछ भी किसी चीज को ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो सीक्वेंस होना चाहिए, प्लॉट होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, और इसमें डायलॉग भी होना चाहिए, किसने क्या कहा, एंड इट ऑल कंप्राइजेस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब बिना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के नहीं कर पाएंगे। तो पहले नरेटिव आप शुरू कर सकते हैं फिक्शन में, जैसे किसी भी कहानी में आप यूज कर सकते हैं सिंपल नरेटिव, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल इवेंट। इस पहले हुआ, पहले वो, इससे पोस्ट मास्टर, पहले वो आया उलापुर, उसके बाद क्या देखा उसने, उसके बाद फिर क्या देखा, फिर उसने क्या सोचा, उसने क्या कहा, डायलॉग होता है उसमें, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं उसमें। So it has a plot and which has a story. तो आप शुरू कीजिए पहले नरेटिव राइटिंग से,
कि आप किसी भी स्टोरी को लेकर के या किसी भी इवेंट को लेकर के आप बता सकते हैं। आप इसको लिख के लाइए नेक्स्ट क्लास के लिए, नैरेटिव राइटिंग। Okay. किसी भी इवेंट को देखिए, कोई भी न्यूज को देखिए, किसी भी स्टोरी लाइन को आप पढ़िए, ठीक है। स्टार्ट विद नैरेटिव राइटिंग। हाँ, तो मैंने कहा कि सेकेंड ईयर की स्टोरी है द गिफ्ट ऑफ मे। आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, एक आपको हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं, ये कहानी आप पढ़ के आइएगा, ठीक है। Write down the name. The Gift of Magi by O. Henry. नाम क्या है कहानी का? The gift of The Gift of Maggie Magi. by O. Henry. Magi. ठीक है, इसको पढ़िएगा। Okay. और अगले क्लास में आपका रिटर्न वर्क है, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी आपको, उसी क्वेश्चंस पे आप उसको आंसर करेंगे। इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। तो पहले आप पढ़ के आओगे पहले इसको, ठीक है। आगे Yes, ma'am. बढ़ना है तो टीचर्स का इंस्ट्रक्शन समझिए और फॉलो कीजिए, ठीक है। द गिफ्ट ऑफ मेजाई बाय ओ हेनरी पढ़ के आइए। मुझे भी देखना है कि कितने लोग पढ़ के समझ पाते हैं इस चीज को, ठीक है। एंड आप एंटर कर रहे हैं नरेटिव राइटिंग, नरेटिव स्पीकिंग में, नरेशन में, ठीक है। चलिए, Yes, ma'am. Thank you, ma'am. लिटरेचर ग्रामर से अलग नहीं होता है। वो सारी चीजें Yes, ma'am. लिटरेचर में है जो कि ग्रामर में आपको पढ़ना है। नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, नरेशन, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एवरीथिंग इज इन लिटरेचर, ठीक है। चलिए, ओके।